हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. In the previous videos we discussed about chemical classification, and in which we complete our classification of pure substances in the terms of elements, metals, non metals and metalloids. मतलब पिछली वीडियो में हमने केमिकल कंपोजिशन में प्योर सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पढ़ लिया था. आज के इस सेक्शन में हम कंपाउंड्स के बारे में और कंपाउंड्स के दोनों टाइप, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो कंपाउंड्स क्या होते हैं और वो एलिमेंट से कैसे अलग होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं. सो व्हाट आर कंपाउंड्स? लेट्स टेक अ सम एग्जांपल like water, which is H2O. So if I ask you how water is formed, so we know one hydrogen atom combined with oxygen atom, and this oxygen atom also combined with another hydrogen atom to produce a molecule of water, H2O. Like other chemical compounds, in water also the atoms are combined together. So if we talk about compounds, so compounds are chemical combination. Compounds are chemical combination of atoms. First thing to remember. Second thing, the composition of atoms in a compound is fixed. That means the ratio at which atoms are present in a compound is always fixed. So atoms are present in a compound by fixed ratio of mass. जब भी हम एक कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ हमें दो ही बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पहली चीज कि एटम का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उससे कंपाउंड बनता है, और दूसरी चीज कि जो कॉम्बिनेशन का रेशियो होता है बाय मास वो हमेशा फिक्स होता है. फॉर एग्जांपल H2O में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखेंगे तो वो हमेशा 1:8 ही होगा. इसलिए जो कंपाउंड्स की डेफिनेशन होगी वो होगी ए प्योर सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स in a definite proportion by mass. And the third thing we can say, it can be further decomposed into simpler substances or simpler atoms. For example, H2O can be decomposed into H and O. So finally, compounds are the pure substances which obtained by the chemical combination of two or more elements in a definite proportion by mass and can be decomposed into its constituent elements. Example, there are so many examples of compounds are table salt, NaCl, also a compound. Anything which have a definite chemical formula is also called a compound. So this is also a characteristic of compounds.
that compounds always have a certain, a fixed chemical formula. A fixed chemical formula. So in term of compounds, we should know these three things. First one is compounds are chemical combination of atoms. जब atoms chemically कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो ऑफ मास में, तब हमें मिलता है कंपाउंड. फिक्स रेशियो ऑफ मास का मतलब है कि किसी कंपाउंड में जब आप बाई मास रेशियो देखेंगे तो वो हमेशा फिक्स होगा. जैसे H2O में H और O का जो मास है वो 1:8 है. और अगर NaCl की बात करें तो NaCl का मास रेशियो अगर देखेंगे तो वो 23:35.5 होगा. कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसका आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके पास उसका फिक्स केमिकल फॉर्मूला है, वो एक कंपाउंड है. नाउ कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज आर inorganic compounds and second one is our organic compounds. So what are inorganic compounds and organic compounds? If we talk about inorganic compounds, so the compounds which are obtained from non-living things are generally called inorganic compounds. So inorganic compounds are those, वो सारे कंपाउंड्स जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, जिनका सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स है. नॉन लिविंग थिंग्स जिनका सोर्स है उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे वाटर से हमें कोई चीज मिल जाए, या अर्थ क्रस्ट से हमें कोई चीज मिल जाए, रॉक से हमें कोई चीज मिल जाए. सो इन सब नॉन लिविंग थिंग्स से अगर हमें कुछ मिल रहा है तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप वाटर ले सकते हैं H2O, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं विच इज HNO3, पोटेशियम सल्फेट ले सकते हैं K2SO4. It means anything which can obtain from non-living things. Non-living things are called inorganic compounds. On the other hand, if we talk about organic compounds, so organic compounds are generally the compounds in which carbon element is present as a main element. They are generally obtained from living things, but it is not mandatory. These can be synthesized in laboratory also. So organic compounds वो सारे compounds हैं जिनमें कार्बन as a main element present होता है, as a main element present होता है, उनको हम organic compound कहते हैं. जनरली इनका जो सोर्स है वो लिविंग थिंग्स होता है. लिविंग थिंग्स मीन्स या तो ये आपको प्लांट से मिलेंगे या तो ये आपको एनिमल से मिलेंगे. एग्जाम्पल के लिए लड्डू तो आप सब लोग खाते हैं. हर तरीके के लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आप यूज करते हैं और जो मैंडेटरी है, शुगर. कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. एंड शुगर का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो C12H22O11 हो जाएगा. एंड दिस इज आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब गर्मियाँ चल रही है, गर्मियों में आपको एक ऐड दिखाया जाएगा कि बाहर घूमते हो, एनर्जी कम होती है, ग्लूकोज कम हो जाता है बॉडी में. तो जो ग्लूकोज है
वो भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, लिविंग थिंग से मिलता है, तो हम उसको भी ऑर्गेनिक कहेंगे। और भी एग्जांपल्स है, जैसे बहुत सारे फैट्स इसके एग्जांपल होंगे, ऑयल्स इसके एग्जांपल होंगे। आप सब्जी बनाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड ऑयल क्या है, मस्टर्ड ऑयल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे क्या, सारे प्रोटीन्स किसका एग्जांपल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल्स है। एंड an important example of organic compound is your LPG। वैसे तो LPG मिक्सचर होता है, एंड मिक्सचर किसका होता है, हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, बट ये सब होते ऑर्गेनिक है। तो सारे हाइड्रोकार्बन्स भी कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो this is the classification of compounds. Now we will move to our next topic, which is mixture. So now we will talk about mixtures. मिक्सचर मतलब चीज़ों को मिक्स करने से जो चीज़ हमें मिलती है, जो सब्सटेंस हमें मिलते हैं, वो मिक्सचर होते हैं। आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए, कोई भी प्योर सब्सटेंस लीजिए और उनको रैंडमली किसी भी रेशो में मिला दीजिए, उससे हमें जो मिलेगा वो मिक्सचर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को मैंने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। जैसे ही सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया तो मेरे पास बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड दिस सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। अनदर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स, आप सॉल्ट के साथ इस बार वाटर को नहीं शुगर को मिला दीजिए, तब भी आपको जो मिलेगा वो एक मिक्सचर होगा। मतलब मिक्सचर के लिए आपको करना क्या है, मिक्सचर के लिए आपको कोई भी प्योर सब्सटेंस लेने हैं, 2 or more प्योर सब्सटेंस which are chemically non-reacting, 2 and more pure substances, इनको लीजिए। ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, और इनको किसी भी रैंडम रेशो में मिला दीजिए, तो जो मिलेगा वो मिक्सचर होगा। So there are two important things to remember in mixtures. Mixtures are combination of 2 or more pure substances, but which is not chemically. Combination is not chemically. These are chemically non-reacting substances. And the substances from which a mixture is formed is called their components. आपने 2 चीज़ें ली तो उनमें से आप एक एक चीज़ को क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं। सपोज कीजिए कि जब आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट एक कंपोनेंट है और वाटर आपका दूसरा कंपोनेंट है। सेम एज जब आप सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तब सॉल्ट आपका फर्स्ट कंपोनेंट है एंड शुगर आपका सेकंड कंपोनेंट है। सो फर्स्ट थिंग ये हुई कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंसेस को लीजिए और उनको किसी भी रैंडम रेशो में मिक्स कर दीजिए, तो उससे हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा मिक्सचर। सो मिक्सचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more pure substances in any random ratio, and the components of a mixture are chemically non-reacting
and retain their identity in the mixture. Retain their identity means आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, जब आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो उस सॉल्यूशन के अंदर शुगर और वाटर दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दोनों की प्रॉपर्टी सेपरेटली एग्जिस्ट करती है। इसी बात को हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी आफ्टर मिक्सिंग अप। सो मिक्सचर्स आपके क्या हुए? मिक्सचर्स आपके हुए ऐसे ऐसे दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होता है और किसी भी रैंडम रेशो में होता है। दूसरा, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। नाउ वी विल कंसिडर टू टाइप्स ऑफ examples of mixtures. First category I will take from sugar solution or alloys. Alloys means mixed metals like German silver, steel, brass, bronze, etc. And second category I will pick as salt plus sugar or mixture of different pulses. Mixture of different pulses, बहुत सारी दालें आपने ली और उनको मिला दिया। अब इन दो कैटेगरी के मिक्सचर में आपको क्या क्या सिमिलरिटी या क्या क्या डिससिमिलरिटी या क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? जब मैं कैटेगरी ए की बात कर रहा हूं, कैटेगरी ए में सबसे पहली चीज जो है वो है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है जब आप शुगर सॉल्यूशन को या किसी भी अलॉय को देखेंगे तो वो आपको हर एंगल से एक जैसा दिखाई देगा, उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो एक जैसा होगा। कॉम्पोजिशन मीन्स जो कंपोनेंट्स उसमें आए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। जब आप सपोज किसी अलॉय को देख रहे हैं, सपोज ब्रास को आप देख रहे हैं, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। सो जिंक और कॉपर आपको उसमें अलग अलग दिखाई नहीं देगा, जिंक और कॉपर दोनों इस तरीके से मिक्स होंगे कि वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। सेकेंड थिंग, द कंपोनेंट्स ऑफ कैटेगरी ए, कैटेगरी ए के जो मिक्सचर्स हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको सेपरेटली विजिबल नहीं होंगे। कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली। जैसे शुगर सॉल्यूशन में है, एक बार सॉल्यूशन बन जाने के बाद आपको शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। अलॉयज एक बार बनने के बाद, जैसे ब्रास आपने बना लिया तो जिंक और कॉपर आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। इन दोनों प्रॉपर्टी के अपोजिट अगर हम बी कैटेगरी की बात करते हैं तो बी कैटेगरी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी कि every part of the mixture is not same, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, जनरली इस कैटेगरी के मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो देखे जा सकते हैं इवन बाय नेक्ड आइज। जनरली कंपोनेंट्स आर
components are seen. Components are seen even by naked eyes. Sometimes it is hard to predict, it is hard to see the components of a mixture, but if we use microscope and any other tool, we can see them properly. So एग्जाम्पल के लिए अगर हम कैटेगरी बी में मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पल्सेस की बात करते हैं तो आप उनको अलग अलग देख सकते हैं। तो दो ही चीज़ें हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, पहला कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है, और दूसरा कंपोनेंट्स अलग अलग विजिबल है कि नहीं है। इन्हीं कैटेगरीज को, इस फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, and the second category is called heterogeneous mixture. So homogeneous mixtures are mixtures in which components are distributed uniformly. That means mixtures are of uniform composition are called homogeneous mixtures. Generally we cannot see the components of a homogeneous mixture, like sugar solution हो गया आपका, और साल्ट सॉल्यूशन हो गया, या आपके अलॉयज हो गए। इस तरीके के जो मिक्सचर्स है वो होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं। ऐसे ही अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं तो द मिक्सचर्स इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, that means mixtures possess different composition in their different parts. उसके अलग अलग पार्ट में जो कंपोजिशन होगा वो अलग अलग होगा। हम उसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। हमने भी पल्सेस का एग्जांपल लिया है, सॉल्ट प्लस शुगर का एग्जांपल लिया है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आपको बताता हूँ, विच इज मिल्क। देखने में आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, बट जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें लैक्टोज, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई देगी। इसलिए हम मिल्क को हेट्रोजीनियस मिक्सचर मानते हैं। सेम एज वन अनदर एग्जांपल इज वुड, लकड़ी। लकड़ी भी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ सेल्यूलोज, लिग्निन, वाटर कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। इसलिए वुड एंड मिल्क बोथ आर कंसिडर्ड एज heterogeneous mixtures. So quickly summarize करते हैं, we will talk about next topic in next video, but now summarize करते हैं। हमने कंपाउंड्स के बारे में बात की। कंपाउंड्स वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बने होते हैं एटम्स के, और एटम्स जो कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं वो एक फिक्स रेशो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे H2 में H और O का बाई मास रेशो हमेशा 1:8 मिलेगा। कंपाउंड्स में आपको दो कैटेगरी मिलेगी। पहली कैटेगरी होगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये वो कंपाउंड्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट से मिल गए, किसी रॉक से मिल गए, या वाटर कंटेंट से मिल गए, या किसी और मिनरल से हमको मिल गए, जैसे वाटर खुद, या नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन एक मेन एलिमेंट की तरह प्रेजेंट होता है, और ये जनरली लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में ऑलमोस्ट सभी के सभी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। आपका एग्जांपल के लिए शुगर है, ग्लूकोज है, फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। अब हमने इसके बाद मिक्सचर की बात की है, और मिक्सचर्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस है जब हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी रैंडम रेशो में मिला देते हैं, और वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अब ये मिक्सचर भी दो कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी होमोजीनियस मिक्सचर की है, दूसरी कैटेगरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की है।
होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनके कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते हैं और इनके होल सैंपल, थ्रू आउट द होल सैंपल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट्स का वो एकदम यूनिफॉर्म होता है, मतलब वो आपको एक जैसे दिखाई देंगे। एग्जांपल के लिए जैसे अलॉयज हो गई, ब्रास, आपका ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, या और दूसरी चीज़ें जैसे जर्मन सिल्वर हो गया, उन सब चीज़ों को हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रखेंगे और वो सब होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे। सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो सारे मिक्सचर्स हैं जिनका हर पार्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं होता, उनके कंपोनेंट्स सेम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं सारे पार्ट्स में, और जनरली उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है, जैसे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पल्सेस, या मैं सॉल्ट और कोई दूसरी चीज़ उसमें मिला दूँ, जैसे शुगर मिला दूँ, या सैंड प्लस आयरन फिलिंग्स एक एग्जांपल हो सकता है जिसको हम हेट्रोजीनियस कंसिडर कर सकते हैं। टू इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस आर मिल्क एंड वुड। सो ये क्वेश्चन है, हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सी चीज़ प्योर सब्सटेंस होगी, कौन मिक्सचर होगा। प्योर होगा तो एलिमेंट होगा कि कंपाउंड होगा, मिक्सचर होगा तो होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा, और एलिमेंट्स होगा तो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। इन सारी चीज़ों को क्लासिफाई करना है। सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अगर आप कर पाएँ तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको करा देता हूँ। तो फर्स्ट हमारा जो दिया है वो है जर्मन सिल्वर। एज यू नो जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय। सो अलॉयज जो होती हैं वो क्या होती है, अलॉयज मिक्सचर्स होती हैं, और मिक्सचर्स में अलॉयज होती है होमोजीनियस। आई थिंक it is clear to all of you. German silver will be a mixture and it is a homogeneous mixture. So next are glucose. We have already talked about glucose. Glucose is a compound and we can say it is pure and compound and organic compound. Okay, now water. Here anything not is mentioned. The water is come from which source, so we consider it as H2O, and if we can write a chemical formula for anything, it would be a compound. So water is also pure compound but inorganic compound. Blue vitriol, this is also called copper sulfate, and we can write the formula. So it is a pure substance, pure and compound. Its source is non-living thing, so it is a inorganic compound. Vegetable oil, as we have discussed earlier, vegetable oils are organic compounds, so these are in pure compounds and organic compounds. Brass, again alloy, you can classify. 1 rupee coin, 1 rupee coin, in which category it will lie? I am telling you, 1 rupee coin is lie in the category of alloy, and alloy also is a mixture of homogeneous mixture. So आप कमेंट कीजिए कि 1 रुपी कॉइन का जो अलॉय होता है वो कौन सा होता है, किन किन चीज़ों से जो कॉइनेज जो मटेरियल है वो क्या होता है, और किन मिक्स मेटल से 1 रुपी कॉइन बना होता है। सेम एज स्टील, स्टील को भी आप बताएंगे, ये भी एक अलॉय है, और
किस किस चीज का अलॉय है ये आप बताएंगे। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज जनरली allotrope of carbon, so it would be C, and C, so it is pure single element, we call it element, and carbon, which is element, metal, non-metal or metalloid. So carbon is a non-metal. Carbon is considered as non-metal. Okay, let us further talk about wood. We have discussed milk. We have discussed LPG. LPG, mixture of hydrocarbons. Mixture of hydrocarbons. And hydrocarbons are organic compounds, but it is a mixture. So it is a mixture, and mixture is homogeneous. Helium, which is He, you can classify it as pure element. 22 karat gold, we all know pure gold is 24 karat, so there must be any impurity in this gold, so it is a mixture and homogeneous mixture. We will treat it like an alloy. Iodized table salt, very important example. We all know about table salt, and we write the formula of table salt is NaCl, but here clearly mentioned is iodized salt, the salt in which iodine is present. So iodine is present in NaCl in the form of sodium iodide. So basically these two are mixed together to form iodized salt, and both are pure compounds and mix in a random ratio, and chemically non-reacting. So iodized salt is a mixture, and mixture, what type of mixture? Heterogeneous. So students, this is your complete classification of matter, physical and chemical both. Do revise and do questions as much as you can. Practice, revise and make your notes.